Hello everyone, today's topic is pair of linear equation in two variables for class 10. I am Chandrakanta, TGT Mathematics from KBJRC Bareilly. Now linear equation in two variables, as you have already learned in class 9, the general or the standard form of the linear equation in two variables is ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are the real numbers and a and b both cannot be equal to 0. Now pair of linear equation. Two linear equation in the same two variables are called a pair of linear equation in two variables. The most general form of a pair of linear equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus b2y plus c2 equal to 0, where a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are real numbers, such that a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is also not equal to 0. Now solution of a pair of linear equation in two variables. The solution of the linear equation in two variables x and y is a pair of values, one for x and one for y, which makes the two sides of the equation equal. तो बच्चों क्या मीनिंग हुआ इसका? सोल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यूज़ जो इक्वेशन 1 में पुट करिए तो LHS RHS के इक्वल आ जाए, और इक्वेशन 2 में पुट करें तब भी LHS RHS के इक्वल आ जाए. दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So there are two methods to solve a pair of linear equation. Number one is graphical method and number two is algebraic method. तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड. बच्चों क्लास 9th में आपने ग्राफ से लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट, टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सीखा था, और आपने देखा था कि हमेशा ग्राफ जो था वो एक स्ट्रेट लाइन आता है. नाउ if you draw a pair of linear equation in two variable graphically, then there are three cases arises. Number one is if the graph of two equation intersect at a point, it means the lines are intersecting lines, then that point gives the unique solution. बच्चों जहाँ पर लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन two variables. And this, in this case, the pair of equations is consistent. Now the second, if the graph of the two equation of are two parallel lines, अगर वहाँ पर दो parallel lines draw होती हैं, then the pair of equation has no solution, and in this case the pair of equation is inconsistent. और third case है if the graph of two equations are two coincident lines, यानी वो अलग अलग लाइन ना होकर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, then there are infinitely many solutions and the pair of equation is कंसिस्टेंट. बच्चों इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन होगी और आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, तो बहुत सारे सोल्यूशंस हो जाएंगे. अब यहाँ पर बच्चों हमने ग्राफिकल मेथड से जो तीन ग्राफ ड्रॉ किए थे उसमें से ये तीन, पहला ग्राफ है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीन्स यूनिक सोल्यूशन का है, सेकंड वन इज़ पैरेलल लाइंस मीन्स नो सोल्यूशन, एंड थर्ड वन इज़ कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. Now, as you know, the general form of a pair of linear equations is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो बच्चों अगर हम इसके x और y के कोफिशिएंट और c1 और c2 का रेशियो लें तो तीन केसेस मिलते हैं, और इन तीन केसेस में हमें पता चल जाएगा कि कब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी और कब पैरेलल होंगी. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, lines are intersecting lines. Unique solution, and the pair of linear equation is consistent. Second case is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then coincident lines, infinitely many solutions. Then the pair of equation, linear equation is consistent. And the third case is if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then lines are parallel, no solution, and the pair of the linear equation is inconsistent. Now, algebraic method of solving a pair of linear equation.
In class 10, there are three methods for finding the solution of a pair of linear equation. Number 1, substitution method. Number 2, elimination method. And number 3, cross multiplication method. ना फर्स्ट मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड, नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल सब्सटीट्यूट करनी है एक इक्वेशन में। आप देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो वो x एंड y है, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y in terms of x from first equation. Second step is substitute the value of y in the second equation. Third step is find the value of x from the second equation after substituting the value of y in terms of x, and then put the value of x in either in first or in second equation to find the value of y. तो इस तरह से बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। नाउ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड मीन्स एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अब कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। यानी हम दोनों इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लें या फिर y के। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं अगर उनके साइन सेम है तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस कर देंगे या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। अगर उनके साइन डिफरेंट है तो हम उनको ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा जिसके कोफिशिएंट सेम है, और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे ही हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों इस मेथड में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो मान लीजिए जनरल फॉर्म जो हमारा लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का था वही रखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम x y z तीनों लिख लेंगे, पर x के नीचे हम दोनों के x के कोफिशिएंट को छोड़कर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y के कोफिशिएंट यानी b1 b2 और फिर c1 c2। फिर y में आप आ जाइए, y के नीचे c1 c2 ऑलरेडी है। अब क्या बचेगा, y के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, a1 a2। अब आ जाइए 1 के नीचे a1 a2 ऑलरेडी है। तो अब हम c1 c2 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका, b1 b2। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सेकंड स्टेप में इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी x/b1 c1 - b2 c1 x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। ओके, तो इस तरह से हम x की वैल्यू को पहले x/b1 c2 - b2 c1 = 1/a1 b2 - a2 b1 रख के x की वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट के दोनों को इक्वल करके y की वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या है कि y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1 रख के y की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।